हाल में। हेलो माइक चेक। हेलो माइक चेक चेक। अब इसको बंद नहीं करना है आप। माइक चेक चेक 1 2 3। हेलो हेलो लास्ट फाइनल कॉल। माइक चेक। এয়া আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ এই সভাৰ দিশে তেখেতে আহি আছে আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে তেখেত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু তেখেতৰ উপস্থিতিৰ পাছতেই আমাৰ আজিৰ মূল কাৰ্যসূচী দিশে আমি আগবাঢ়িম। আমি সকলোৱে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ, আমি ধন্য হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা, আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক, আমাক গুৰি ধৰোঁতা ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী Ibu lu kayaknya sungguh keren nih. Siapa? Dari sini. दर्शकगण, राष्ट्र नायक भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नै मार्चआव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायजेनदोंमोन। बर'नि हारिनि राव थुनलाइ हारिमुआरि थामोनथाखौ रैखाथि आरो जौगाथायनि थाखाय दिनैनि जारिमिनारि समाव जों बिथांनि हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनायखौ थारैनो गोसोखांनांगोन। बिनि मुसुखायाव मानगोनां भारतनि गाहाय मन्त्रि श्री नरेंद्र मोदी बिथाङा बिबारनि माला तालियों की जोरदार गूंज के साथ स्वागत करते हैं राष्ट्र नायक भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, will now be facilitated by the Honorable Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi, and the Honorable Chief Minister of Assam, Shri Harmanandar Punwar, in a traditional way by offering. Honorable Prime Minister of India will now be welcomed by Shri Hagrama Mohirari, Chief of Bodoland Territorial Council. And now will be welcomed by the signatories of the Historic Boer Peace Accord. I request Shri Lawrence Islari, General Secretary, All Bodo Students Union, to kindly welcome the Honorable Prime Minister of India. We also request Shri Mihineswar Basumatari, President UBPO, to welcome Honorable Prime Minister of India. Now, Shri Dhirendra Bolo, the President of NDFBP, will welcome our chief guest.
Shri Govinda Basumatari, the President of NDFB Progressive, will also welcome our chief guest. Honorable Prime Minister of India will now be welcomed by Shri Amar Basumatari, Chairman, NDFBS. Will also be welcomed by the Chairman of NDFB-RD, Shri Ranjan Daimari. We once again welcome you, sir. Ladies and gentlemen, the second Bodoland Accord was signed between Bodo Liberation Tigers, which brought a lasting peace, and subsequently Bodoland Territorial Council under the leadership of Shri Hagrama Mohilari has played a very important role in ushering a new era of peace and progressive Bodoland. May I now request Shri Hagrama Mohilari, Chief of Bodoland Territorial Council, to welcome Honorable Prime Minister of India with his words. সম্মানীয় শ্রীযুত নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া, শ্রীযুত সর্বানন্দ সোনোৱাল ডাঙরিয়া আর উপস্থিত হওয়া পড়া উপস্থিত রাজ্যসভার এমপি বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙরিয়া, উপস্থিত আগৰ আমাৰ এমপি ইউজিপ আৰু আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ আৰু গাৰো ৰাভা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ সন্মানীয় ৰাইজসকল, গাৰ্জেনসকল, প্ৰথমতে মই আপোনাৰ সকলোকে বিটিচি বাকী ৰাইজৰ হৈ আপোনালোকক আজি এই বড়ো ফিজটো আমি শেষ কৰিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমি বহুত আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া। যেন হওক আমি ইয়াত NDFB বীজ হাওৰাইগা, NDFB গোবিন্দ বসুমতাৰী, NDFB ৰঞ্জন দৈমাৰী, NDFB ধীৰেন বড়োৰ নেতৃত্বত যিটো চুক্তি হৈ গ'ল, লগতে আপচু যিটো চুক্তি হৈ গ'ল, এই চুক্তিৰ দ্বাৰা দি আমাৰ বড়ো সমাজত তথা বিটিচি অঞ্চলত শান্তি আহিব। আৰু এই চুক্তিৰ দ্বাৰা দি অকল বড়োসকল নহয়, এই চুক্তিৰ দ্বাৰা দি বিটিচি অঞ্চলত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে কোনো চিন্তা কৰিব লগা নাই। বেংগলী হওক কোনো চিন্তা কৰিব লগা নাই, মুছলিম হওক, গাৰো হওক, ৰাভা হওক, আদিবাসী হওক, হিন্দীভাষী হওক, চবেই আমাৰ বিটিচিৰ বাসী ৰাইজ। আমি আগত যেনেকৈ আছে ভৱিষ্যতো আমি একেলগে থাকি পেলাই এই বিটিচিৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম। কোনো ভয় কৰিব লগা নাই। এই চুক্তি অকল বড়োসকলৰ কাৰণে নহয়, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এই চুক্তিটো সমানে অৱদান দিব, সমানে আমি উন্নতি হ'ব। যিকোনো জাতি, কোনো লেংগুৱেজ, কোনো কালচাৰ ডিফাৰেণ্ট নহ'ব, সকলো একেলগে আমি কাম কৰি যাম। কথা সেইটোৱেই, কোনো ভয় কৰিব লগা নাই। বেংগলী হওক, হিন্দীভাষী হওক, আদিবাসী হওক, গাৰো, ৰাভা, মুছলিম চবেই একেলগে আমি কাম কৰি যাম বিটিচিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে অসমত আজি 4 বছৰ হৈ গ'ল, অসমত বিজেপি চৰকাৰে 4 বছৰ হৈ গ'ল। 4 বছৰৰ ভিতৰত বিটিচি অঞ্চলত কি হৈছে, কি হোৱা নাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ওদালগুৰি, কোকৰাঝাৰ, মেডিকেল কলেজ কোকৰাঝাৰ, ইউনিভাৰ্চিটি কোকৰাঝাৰ, আৰু কোকৰাঝাৰৰ চিৰাঙত ফৰেষ্ট স্কুল, কোকৰাঝাৰত স্পৰ্টছ কলেজ, এইবিলাক আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছতে আমি বিটিচিত এইবিলাক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ছাৰ, पहले हम कांग्रेस के साथ कितना साल बैठा था, लेकिन शिक्षा नहीं मिला। 7 साल में देखो असम में बीजेपी सरकार आने का बाद हम क्या क्या मिला, हम क्या क्या मिला, बहुत मिला हम।
और होने वाला तो और है बच्चा आपको और हमको 3 साल के लिए 1500 रुपया दिया। 5 साल के लिए देने से अच्छा था 2500। जो भी हो, आप 2016 में कोकराझार में आया था, आप बोला रूपसी एयरपोर्ट बना के देंगे, हो गया, अभी खुलने वाला है, खत्म हो गया काम रूपसी एयरपोर्ट। और इसके बाद आपने बोला था स्लाइड को जेम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जेम यूनिवर्सिटी हो गया, जेम यूनिवर्सिटी हो गया। और हमारा मानना यह है कि जेम यूनिवर्सिटी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस इसमें लेके जाने से और ज़्यादा अच्छा होगा शहीद को, ये है। और ये साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है, एनडीएफबी लोग आज छुट्टी क्या है, उन लोग का यहाँ पे जल्दी हो जाओ। और पहले बीएलजी लोग का जो केस था, वो जो सिस्टम से केस हाइनास हो नॉन हाइनास हो खत्म हो गया हमारा, तो एनडीएफबी का भी ऐसे ही हो जाओ, एनडीएफबी का भी ऐसे ही होना चाहिए, हाइनास हो नॉन हाइनास हो, हमारा एक रिक्वेस्ट है। तो टाइम नहीं है, टाइम गैला रायजोफोर, जायखिजाया मेरला समय दंना, मेरला समय दं, आरामसे मेरला समय আছে আমার মাঝে, আমি কালি পুরা মেরলা মিটিং করি, চিন্তা করব নালাগে, সব কথা কই দিব দেই, আরামসে বহুত সময় আছে আমার, অকল আজি নহয় ভবিষ্যতে আরো লগ পাই থাকিব। ইলেকশন আহি আছে, সরকার আসাম में बीजेपी होगा 2021 में भी, आराम से। और ये 2020 का बीसीसी सरकार बनाएगा बीपीएफ, बस ठीक है, नमस्कार। श्री हाग्रामा महिला महोदयनो आमी धन्यवाद ज्ञापन करिছো। दायो मोसानानै दिन्थिफुंगोन बर'नि मुंदांखा माहारि मोसानाय बागुरुम्बा। बागुरुम्बा मोसानाया बर' माहारिनि मोसानाय। बियो बर' सिख्लाफोरनि रंजानायजों बागुरुम बाज्ल'नानै गोसोनि रंजानायखौ फोरमायनाय मोनसे मोसाखावरि। The Bodo people are known for their rich culture and heritage, and Bagurumba is their traditional dance, depicting celebration of harvest festival which originates from Mother Nature. We now present to you this beautiful dance form. 그래 문찬이고 김치 누구나 놀랄래? 아 야 마이크 뭐 한다고
আটাইকেইগৰাকী শিল্পীলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। पहले मैं सिग्नेटरी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हार्दिक दिल से आपका स्वागत करता हूं। आपने इतने दूर कोकराझार तक आने का जो कष्ट उठाया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस मंच पे विराजमान असम के गवर्नर रेस्पेक्टेड मुखी सर, असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, असम के मंत्री नेता के अध्यक्ष हिमंत बिश्व शर्मा जी, बीटीसी के चीफ अग्रमा महिलारी जी और मंच पे विराजमान हमारे बोडो साहित्य सभा के प्रेसिडेंट और बोडो संस्थाओं के नेतृत्व और आज के इस रैली पे उपस्थित असम के कोने कोने से आए हुए भाइयों बहनों, मैं बोडो जाति की तरफ से आप सबको आज स्वागत करते हैं। खुलुमबाय। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। बे समाव मैं सकलोलै आदरणी जनाइछु। सर, आपको बोडो जाति की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद हम लोग देते हैं। ये समझौता जो आपने किए हैं, आपके नेतृत्व में जो समझौता हुए हैं, ये पूर्वोत्तर के लिए, बोडो जाति के लिए और भारत के लिए एक नया परिस्थिति लेके आए हैं। हम लोग काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो प्रांत है, हमारे जो एरिया है, हमारे जो रीजन है, इसमें शांति हो, हमारे यहाँ अमन हो, सब प्यार और भाईचारे से जीने का एक मौका मिले। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे थे। ये बोडो आंदोलन जो है, बोडो का उपेंद्रनाथ ब्रह्म ने आज से 3 डिकेड्स पहले शुरू किया था। उनका सपना था कि एक सुनहरे बोडोलैंड बनाने के लिए, जहां अमन हो, विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय अपना भाषा संस्कृति को लेके एक साथ जीने का एक सपना था। और ये सपना को साकार करने में आपने जो किया है, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ये इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए लिखा रहेगा। सर, आपने जो काम किया है, ये मानवता के सबसे ऊपर, सबसे ऊंची स्तर पे आपने काम किया है। क्योंकि ये जो मिलिटेंट के नाम पे, मिलिटेंसी के नाम पे हमारे भाइयों भूटान में, म्यांमार में, बांग्लादेश में और जंगल में रह के काफ़ी सालों से लड़ रहे थे, इनके जो माँ है, इनको जो बहन है, ये बेसब्री से, बेचैनी से इंतजार कर रहे थे अपने बेटा, अपने भाई कब आएंगे। ये समझौता करके, ये बीटीआर बना के आपने एक माँ को बेटा दिलाने का काम किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। इसलिए आने वाले समय में आपने जो नेतृत्व भारत को दिया है, ये सारा भारत के लिए एक इतिहास बन जाएगा। मैं आपके थ्रू हमारे पूर्वोत्तर में जितना भी उग्रवादी संस्था है, मैं अनुरोध करता हूँ, हम पूर्वोत्तर में रहते हैं, ये जो वायलेंस है, ये जो किलिंग्स है, ये बंद करना चाहिए। और आपके नेतृत्व को विश्वास करके हमने जो इतना बड़ा काम किया है, हम लोग को जो मिला है, उन लोग को भी विश्वास करके आगे आना चाहिए। मैं इनको विनती करता हूँ। सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपको विनती करते हैं, ये समझौता में आपने बहुत कुछ हम लोग को दिया है। आपका जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है, ये हम लोग का दिल जीत लिया है सर। और हम भी चाहते हैं हम भी इसका हिस्सा बने। तो इसीलिए इस एकॉर्ड में आपने जिसने भी हम लोग को दिया है, इसका आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होंगे, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं सर। सर, ये एकॉर्ड में आपने सिर्फ बोडो लोगों के लिए नहीं किए हैं सर, हमारे साथ रहने वाले आदिवासी भाइयों के लिए, गोरखा भाइयों के लिए, असमीज भाइयों के लिए,
जितने भी समुदाय यहाँ रहते हैं सभी को इस एकॉर्ड में कुछ ना कुछ आपने दिया है। सबसे बड़ा बात हमारे लिए शांति सर। हम लोग, मेरा उम्र अभी 40 साल हो गया है, हम बचपन से वायलेंस से ही लड़ रहे थे सर। इतना वायलेंस हुआ हमारे क्षेत्रों में, हमारे इलाका में, हमारे रीजन में, हमारे बच्चे इसको झेलना पड़ रहा था सर। तो ये जो एकॉर्ड है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक एकॉर्ड है सर। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगा आपकी लंबी उम्र के लिए, और आने वाले समय में भारत में जितने भी समस्या है आपके नेतृत्व में ही इसका जो समाधान होगा मैं उम्मीद रखता हूँ। सम्मानीय राइज, আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে, বহুতে কৈছে ভিক্টৰী ৰেলী। আমি কৈছোঁ ভিক্টৰী ৰেলী নহয়, এইটো আমাৰ সকলো আনন্দৰ এটা ৰেলী, एंड थैंक्स गिविंग रैली। बहुत ने बोला ये विक्ट्री रैली, मैंने बोला ये विक्ट्री रैली नहीं है, ये हमें प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने का रैली है, जो इतना बड़ा काम किया है, इसीलिए धन्यवाद देना हम लोग का जिम्मेदारी है सर। ये धन्यवाद देने का रैली है। तो मैं अपना लोगों ये कैसो जे ইয়াত কোনো ভয় কৰিব লগা কাৰণ নাই। সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে মিলি পেলাই থাকিব পৰা এটা একৰ্ড হৈছে, চুক্তি হৈছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে যাতে ইয়াত কোনো বড়ো জাতিৰ প্ৰতি কোনো বেয়া ভাৱ নাৰাখে মই আপোনালোকক এই সময়ত অনুৰোধ কৰিছোঁ। আদিবাসী হওক, যি হওক, সকলো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে একেলগে আমি মান সন্মানেৰে ভাতৃত্ববোধেৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা সুযোগ পাইছোঁ এই চুক্তিৰ দ্বাৰা। ইয়াত অসমৰ একো ক্ষতি নহয়, বড়োসকলৰ একো ক্ষতি নহয়, অনাবৰৰ একো ক্ষতি নহয়, কোনো জনগোষ্ঠীৰ একো ক্ষতি নোহোৱাকৈ ইমান সুন্দৰ এটা একৰ্ড কৰিছে অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ মিলি। আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। जोबथारनायाव रायजोफोर आं बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै बे रेलिखौ साक्सेस खालामबाय आरो फैबाय थानाय समावबो जिखिनि हारि दानायनि हाबाफारि जों खौसेयै आवगायनांगोन। दिनै रोजा रोजा मुंख्लंफोरनि थै आरो गोलोमदैनि बिनिमयाव जों बेखौ मोननो हादों आरो बेखौ जों मोजाङै हारिनि इयुनखौ जौगाहोनो थाखाय बयबो खौसेयै जोङो हाबा मावलांगोन बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, भारत माता की। ধন্যবাদ শ্ৰোতা সুধীবৃন্দ। এতিয়া আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমৰ মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণটিত তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, BTC মুৰব্বী ভাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া, তৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়া, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ NDFB চাৰিওটা গোটৰ মুৰব্বী ডাঙৰীয়া আৰু আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ইয়াত সমবেত হোৱা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আইসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মাত্ৰ দুটা কথা ক'ব খোজো। উত্তৰ পূৰ্বত স্থায়ী শান্তি উভতাই আনি ভাৰতৰ নৱোদিত সূৰ্যৰূপে উত্তৰ পূৰ্বত এক অগ্ৰণী ভূমিকা দিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। যোৱা মাহটোত মিজোৰামৰ পৰা দুখ আৰু কষ্ট, ত্ৰিপুৰাত 20 বছৰ ধৰি নিৰাশ্ৰয় অনাহাৰে দুখে কষ্টই বাস কৰা ব্ৰু ভাই ভনীসকলক স্থায়ী শান্তি আবাস এটা সম্ভ্ৰান্ত জীৱন দিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঐতিহাসিক ব্ৰু চুক্তি সমাপন কৰিলে। ব্ৰু চুক্তিৰ কেইদিনমান পিছত 1964 চনত BTCয়ে দাবী কৰা উদয়াচল, 87ত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই দাবী কৰা বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ এক সফল সমাপ্তি যোৱা 27 জানুৱাৰীত মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সম্ভৱ হ'ল। অসমৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰি অসমৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰ মাজত বড়োলেণ্ডলৈ সৰ্বাত্মক ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ এক নতুন প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা মোদী ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডলৈ নহয় সমগ্ৰ অসমলৈ শান্তিৰ এক নতুন বতৰা কঢ়িয়াই আনিলে।
আজিৰ এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ হৈ সমগ্ৰ উত্তৰ পূববাসীৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছো। ইয়াৰ লগত সেইগৰাকী ব্যক্তিলৈ মই কৃতজ্ঞতা জনাইছো ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, যাৰ প্ৰচেষ্টাত আজি আমাৰ এই চুক্তি সম্পন্ন হ'ল। তেখেতকো মই এই মঞ্চৰ পৰাই কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আজিৰ এই মঞ্চৰ পৰাই মই অসম সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীয়ে হওক বা আন যিসকল এতিয়া উত্তৰ পূবৰ সংগঠন এতিয়াও শান্তি আলোচনালৈ অহা নাই, বিশেষকৈ মই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনকো এই আলোচনাৰ মেজলৈ আহিবলৈ অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে আহ্বান জনাইছো। কাৰণ আজি আমি অসমত স্থায়ী শান্তি লাগে, অসমত ভাৰতৰ 5খন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সেয়া সম্ভৱ। मैं पुनः एबार मोदी जी को असम वासी और उत्तर पूर्व वासियों का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने ब्रू लोगों को 20 साल का बाद आपने न्याय दिलाया और हमारा बोरो हो और अबोरो हो, मैं अबोरो टर्म्स यूज नहीं करना चाहता हूँ, बोरोलैंड का सब जाति और उपजाति को आपने न्याय दिलाया, शांति दिलाया और आपने असम को बहुत आगे ले जाने का एक नया सपना आपने सार्थक किया। मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आरो এই বড়োলেণ্ড আন্দোলনত যি 4,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল সেই সকল লোকৰ প্ৰতি মোৰ পুনৰ এবাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সকলোৰে পিতৃ মাতৃৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। পুনৰ এবাৰ আশা কৰিম যে বিটিসি চুক্তিৰ পিছত 2003 যি শান্তিৰ বাতৰি আহিছিল 2020 সেই শান্তিক স্থায়ী ৰূপে লৈ আহিব আৰু বড়োলেণ্ড অসমৰ ভিতৰতে উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ এক নতুন দ্বীপলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। বন্দে মাতৰম মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কে, ভাৰত মাতা কে, ভাৰত মাতা কে। জয় অসম, জয় বড়োলেণ্ড। আজি এই বিশাল জনসভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আদৰ্শবাদী নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া, নেডাৰ অধ্যক্ষ, অসম চৰকাৰৰ বিত্ত স্বাস্থ্যৰ চৰম ত্যাগ কৰা প্ৰতিগৰাকী বীৰ শ্বহীদলৈ মই গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আজি এইখন সভা আমি সকলোৱে মিলি আয়োজন কৰিছোঁ একমাত্ৰ কৃতজ্ঞতাৰ স্বৰূপে আমাৰ শ্ৰদ্ধা আৰু আন্তৰিক ধন্যবাদ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক জনাবৰ বাবে। কাৰণ তেখেতে আমাৰ বাবে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ বাবে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে অসমে এটা সুকীয়া স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'ল। কাৰণ এই বড়ো শান্তি চুক্তি কেৱল অসমৰ বাবে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এইটো এটা আনন্দৰ বতৰা। কাৰণ অসমলৈ স্থায়ী শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে, তেখেতৰ সতীৰ্থ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে এই কথা অসমৰ ৰাইজে কোনো কালে পাহৰি যাব নোৱাৰে। আৰু এই শক্তিৰ দ্বাৰা আগন্তুক দিনত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাৰে আগুৱাই যোৱাৰ নিমিত্তে তেখেতসকলে এটা নতুন পথৰ সন্ধান পাইছে। ৰাজনৈতিকভাৱে, অৰ্থনৈতিক
আদিবাসীয়ে হওক, গোৰ্খাই হওক, বেংগলীয়ে হওক বা বিভিন্ন বামুণে হওক, কোচে হওক, কলিতাই হওক, নাথ হওক, যোগী হওক, গাৰোৱে হওক, ৰাভাই হওক, শৰণীয়া কছাৰীয়ে হওক, মদাহীয়ে হওক, হিন্দুৱে হওক, মুছলমানে হওক, খ্ৰীষ্টানে হওক, বুদ্ধিষ্টে হওক, সকলোৱে আজি মৰ্যাদা সহকাৰে এই অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ লগতে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাৰে আগুৱাই যাব পাৰিব। মই বিশ্বাস ৰাখিছো যে আগন্তুক দিনত আপোনালোক সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে আগন্তুক দিনত এই বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোক শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই নিয়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিব। অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনে বড়ো ৰাইজৰ পৰা বহুতখিনি অন্তৰৰ পৰা কামনা কৰে, কাৰণ বড়োসকল হৈছে নিৰ্ভীক আৰু কৰ্ম উদ্যোগী জাতি, সাহসী জাতি বুলি অসমৰ নহয় সকলোৱে জানে। গতিকে নিৰ্ভীক কৰ্মদক্ষ এই বড়ো জনগোষ্ঠী আগন্তুক দিনত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিক বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আগন্তুক দিনত গ্ৰহণ কৰি যাব লাগিব। গতিকে সেই আহ্বান মোৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে ওচৰত আছে। আজি এই শুভক্ষণত মই পুনৰবাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। मैं असम की जनता की तरफ से परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस बार नहीं 2014 से सिंस 2014 जब से उन्होंने प्रधानमंत्री जी का जिम्मेदारी संभाला तब से असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जो मजबूत कदम उठाए, इसके लिए आज नॉर्थ ईस्ट को दुनिया जानने लगा है, समझने लगा है, और नॉर्थ ईस्ट को एक अलग सा पहचान देने वाला अगर कोई है वो नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने कहा, हमें विश्वास दिलाया, आत्मविश्वास जगाया और कहा नॉर्थ ईस्ट कोई मामूली इलाका नहीं, ये देश का अष्टलक्ष्मी है और ये देश का ग्रोथ इंजन है। तो इसलिए इतना बड़ा पहचान, इतना बड़ा इज्जत देने वाला कोई है, ये नरेंद्र मोदी जी है। आप सब हम एक साथ नरेंद्र मोदी जी को आप हृदय से धन्यवाद दीजिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप अपने अपने जगह पर खड़ा होके बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये हमारी दिल का आवाज है और आपने जो हमें रास्ता दिखाया आगे चलने का, विकास के जो रास्ते दिखाया, इसकी वजह से आज नॉर्थ ईस्ट जाग उठा है और आगे बढ़ते रहेगा। और आपने एक्टिव पॉलिसी के द्वारा सारा साउथ ईस्ट एशिया में नॉर्थ ईस्ट को जिस रूप से आपने सजाया है, इससे साफ जाहिर है नई पीढ़ियों को आगे बढ़ने का बहुत हिम्मत मिला है, बहुत साहस मिला है। इसी शब्दों का साथ मैं আজি এই মুহূৰ্তত আপসু NDFB আৰু UP PO সকলো সংগঠনকে এই চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী সকলো সংগঠনকে মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো। হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু NDFB 4টা গোট আৰু মিনিষ্টাৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, আপোনালোকে এটি বহুত ডাঙৰ কাম কৰিলে। সেই কামটো হৈছে যে অসমৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ লগতে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ উন্নয়নৰ বাবে যি শক্তিশালী সিদ্ধান্ত ল'লে, তাৰ বাবে অসমীয়া জাতিয়ে সদায় আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ব। এইটো সাধাৰণ সিদ্ধান্ত নহয়। আমি একেলগে থাকিম আৰু একেলগে উন্নতিৰ জখলাত বগাবলৈ আমি দৃঢ়তাৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিম। এই ভাষা আজি এই চুক্তিৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ দি কৰি গৈছে। এইটো এটা সাৰ্বজনীন চিন্তা আপোনালোকে যি ব্যক্ত কৰিলে, যি সুন্দৰ দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ আপোনালোকে ল'লে, তাৰ বাবে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী, বিধায়ক, সাংসদ আৰু জনপ্ৰতিনিধি বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ সকলোৰে হৈ মই আপোনালোকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো। কাৰণ
আজি আমি আগন্তুক দিনত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম আমি সকলো সময়তে 33খন জিলাৰ ৰাইজ একেলগে থাকিম। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষাভাষী ধৰ্মৰ লোকে একেলগে মিলা প্ৰীতিৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। এইখিনি কথাকে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলো। ধন্যবাদ। জয় অসম। ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি ভাৰত মাতা কি জয় হিন্দ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। दानिया मानगोनां भारतनि गाहाय मन्त्री मुश्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिगोन। May we now humbly request our beloved, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to speak and bless the people of Assam and particularly the people of Bodoland on this day when lakhs and lakhs of people are celebrating this historic Bodo Accord. छात्री हुई जिसको मिली है आबू मोदी। भारत माता की भारत माता की। मंच पर विराजमान असम के राज्यपाल श्रीमान जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, मंत्री श्री हेमंता बिश्वा शर्मा जी, श्री हगरामा मोहिलरी जी, संसद में मेरे साथी विश्वजीत दायमारी, विभिन्न बोडो संगठनों से जुड़े नेतागण, यहां उपस्थित एनडीएफबी के विभिन्न गुटों के साथीगण, यहां आए सम्मानीय महानुभाव और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुलुमबाय। नोथा मोनहा माबोरेदा, नोथा मोनहा गोजनबाना। मैं असम बहुत बार आया, यहां पर भी आया। इस पूरे क्षेत्र में मेरा आना जाना कई वर्षों से रहा है, कई दशकों से रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बार बार आपके दर्शन के लिए आता रहा, लेकिन आज जो उत्साह, जो उमंग आपके चेहरे पर देख रहा हूं, वो यहाँ के औरोनाई और डोकोना के रंगारंग माहौल से भी अधिक संतोष देने वाला है। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बहुत रैलियां देखी है, बहुत रैलियों को संबोधित किया है, लेकिन जीवन में कभी भी इतना विशाल जनसागर देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। जो लोग राजनीतिक जीवन के पंडित हैं, वो जरूर इसके विषय में कभी भी कहेंगे कि आजादी के बाद की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोई पॉलिटिकल रैली हुई तो आज ये विक्रम आपने प्रस्थापित कर दिया है, ये आपके कारण हुआ। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, हेलीकॉप्टर से भी कहीं नजर पहुंचाओ लोग ही लोग दिख रहे थे।
मैं तो देख रहा था उस ब्रिज पर कितने लोग खड़े हैं, कहीं कोई गिर जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा, इतने लोग। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में जब आशीर्वाद देने आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में यहां की माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, तो मेरा विश्वास और बढ़ गया है। कभी कभी लोग कहते हैं, डंडा मारने की बातें करते हैं, लेकिन जिस मोदी को इतने बड़ी मात्रा में माताओं बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो, उस पर कितने ही डंडे गिर जाएं, उसको कुछ नहीं होता। मैं आप सबको नमन करता हूं, माताओं बहनों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों। मैं आज दिल की गहराई से आपको गले लगाने आया हूं। असम के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को एक नया विश्वास देने के लिए आया हूं। कल पूरे देश ने देखा है किस प्रकार से गांव-गांव आपने मोटरसाइकिल रैलियां निकाली, पूरे क्षेत्र में दीप दिए जला करके दिवाली मनाई। शायद दिवाली के समय भी इतने दिए जलते होंगे कि नहीं जलते होंगे, वो मुझे आश्चर्य होगा। मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया में भी चारों तरफ आपने जो दिए जलाए, उसके दृश्य टीवी में, सोशल मीडिया में सब दूर नजर आ रहे थे। सारा हिंदुस्तान आप ही की चर्चा कर रहा था। भाइयों बहनों, ये कुछ हजारों लाखों दिए जलाने की घटना नहीं है, बल्कि देश के इस महत्वपूर्ण भूभाग में एक नई रोशनी, नए उजाले की शुरुआत हुई है। भाई और बहनों, आज का दिन उन हजारों शहीदों को याद करने का है, जिन्होंने देश के लिए अपने कर्तव्य पथ पर जीवन बलिदान किया। आज का दिन बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, रूपनाथ ब्रह्मा जी जैसे यहाँ के सक्षम नेतृत्व के योगदान को याद करने का है, उनको नमन करने का है। आज का दिन इस समझौते के लिए बहुत सकारात्मक भूमिका निभाने वाले ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, उससे जुड़े तमाम युवा साथियों, बीटीसी के चीफ श्री हगरमा महिलारी जी और असम सरकार की प्रतिबद्धता, आप सब न सिर्फ मेरी तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की तरफ से अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी आपको बधाई दे रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। साथियों, आज का दिन आप सभी बोडो साथियों का इस पूरे क्षेत्र, हर समाज
और यहाँ के गुरुओं, बौद्धिकजनों, कला साहित्यकारों के प्रयासों को सेलिब्रेट करने का ये अवसर है, गौरव गान करने का अवसर है। आप सभी के सहयोग से ही स्थायी शांति का, परमानेंट पीस का ये रास्ता निकल पाया है। आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए 21वीं सदी में एक नई शुरुआत, एक नए सवेरे का, एक नई प्रेरणा को वेलकम करने का अवसर है। आज का दिन संकल्प लेने का है कि विकास और विश्वास की मुख्य धारा को मजबूत करना है। अब हिंसा के अंधकार को इस धरती पर लौटने नहीं देना है। अब इस धरती पर किसी भी मां के बेटे का, किसी भी मां की बेटी का, किसी भी बहन के भाई का, किसी भी भाई की बहन का खून नहीं गिरेगा, हिंसा नहीं होगी। आज मुझे वो माताएं भी आशीर्वाद दे रही है, वो बहनें भी मुझे आशीर्वाद दे रही है, जिनका बेटा जंगलों में कंधे पर बंदूक उठा के भटकता रहता था, कभी मौत के साए में जीता था। आज वो अपनी मां की गोद में अपना सर रख करके चैन की नींद सो पा रहा है। मुझे उस मां के आशीर्वाद मिल रहे हैं, उस बहन के आशीर्वाद मिल रहे हैं। कल्पना कीजिए, इतने दशकों तक दिन रात गोलियां चलती रही, आज उस जिंदगी से मुक्ति का रास्ता खुल गया है। मैं न्यू इंडिया के नए संकल्पों में आप सभी का, शांति प्रिय असम का, शांति और विकास प्रिय नॉर्थ ईस्ट का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का नया अध्याय जुड़ना बहुत ऐतिहासिक है। ऐसे समय में, और ये बहुत ही सुखद संयोग है कि जब देश महात्मा गांधी जी का 150वां जयंती वर्ष मना रहा हो, तब इस ऐतिहासिक घटना की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ करके अहिंसा का रास्ता चुनने के लिए एक प्रेरणा स्थली आज बनी है। महात्मा गांधी कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें जो भी प्राप्त होता है वो सभी को स्वीकार होता है। अब असम में अनेक साथियों ने शांति और अहिंसा का मार्ग स्वीकार करने के साथ ही लोकतंत्र को स्वीकार किया है। भारत के संविधान को सर आंखों पर बिठाया है। साथियों, मुझे बताया गया है कि आज जब कोकराझार में इस ऐतिहासिक शांति समझौते को सेलिब्रेट करने के लिए हम जुटे हैं, तब गोलाघाट में
श्रीमद शंकरदेव संघ का वार्षिक सम्मेलन भी चल रहा है। मोई महापुरुष श्रीमंतो होकर देवलोई गभीर प्रणिपात जासीसु মই লগত অধিবক্ষণ কোনরূ সফলতা कामना करिल। भाई और बहनों, श्रीमंत शंकरदेव जी ने असम की भाषा और साहित्य को समृद्ध करने के साथ साथ पूरे भारत को, पूरे विश्व को आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाया। ये शंकरदेव जी ही थे जिन्होंने असम सहित पूरे विश्व को कहा कि सत्य, शौच, अहिंसा सीखिबे समदम, सुख दुख शीत उष्ण आत है बसम, यानी सत्य, सोच, अहिंसा, सम, दम आदि की शिक्षा प्राप्त करो। सुख, दुख, गर्मी, सर्दी को सहने के लिए खुद को तैयार करो। उनके इन विचारों में व्यक्ति के खुद के विकास के साथ ही समाज के विकास का भी संदेश निहित है। आज दशकों बाद इस पूरे क्षेत्र में व्यक्ति के विकास का, समाज के विकास का यही मार्ग सशक्त हुआ है। भाई और बहनों, मैं बोडोलैंड मूवमेंट का हिस्सा रहे सभी लोगों का राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5 दशक बाद पूरे सौहार्द के साथ बोडोलैंड मूवमेंट से जुड़े हर साथी की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को सम्मान मिला है। हर पक्ष ने मिलकर स्थायी शांति के लिए, समृद्धि और विकास के लिए हिंसा के सिलसिले पर पूर्ण विराम लगाया है। मैं देश को ये भी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पूरा हिंदुस्तान इस अवसर को देख रहा है। सारे टीवी चैनल आज अपना कैमरा आप पर लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपने एक नया इतिहास रचा है, हिंदुस्तान में एक नया विश्वास पैदा किया है, शांति के रास्ते को ताकत दी है आप लोगों ने। भाइयों बहनों, मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहता हूं। कभी इस आंदोलन से जुड़ी प्रत्येक मांग समाप्त हो गई है, अब उसे पूर्ण विराम मिल चुका है। 1993 में जो समझौता हुआ था, 2003 में जो समझौता हुआ था, उसके बाद पूरी तरह शांति स्थापित नहीं हो पाई। अब केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो आंदोलन से जुड़े संगठनों ने जिस ऐतिहासिक एकॉर्ड पर सहमति जताई है, जिस पर साइन किया है, उसके बाद अब कोई मांग नहीं बची है और अब विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता है और आखिरी भी वही है। साथियों, मुझ पे भरोसा करना, मैं आपका हूं।
सुरक्षा अरमान, आपकी आकांक्षाएं, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य, मुझसे जो हो सकेगा उसको करने में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं, बंदूक छोड़ करके, बम और पिस्तौल का रास्ता छोड़ करके जब आप लौट के आए हैं, ऐसी परिस्थितियों में आप आए होंगे, मैं जानता हूं, मैं अंदाज लगा सकता हूं। और इसलिए इस शांति के रास्ते पर एक कांटा भी अब आपको चुभ न जाए, इसकी चिंता मैं करूंगा। क्योंकि ये शांति का रास्ता, एक प्रेम का, आदर का रास्ता, ये अहिंसा का रास्ता, आप देखना पूरा आसाम आपके दिलों को जीत लेगा। पूरा हिंदुस्तान आपके दिलों को जीत लेगा, क्योंकि आपने रास्ता सही चुना है। साथियों, इस एकॉर्ड का लाभ बोडो जनजाति के साथियों के साथ ही दूसरे समाज के लोगों को भी होगा, क्योंकि इस समझौते के तहत बोडो टेरिटोरियल काउंसिल के अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है, अधिक सशक्त किया गया है। इस समझौते में सभी की जीत हुई है, और सबसे बड़ी बात है, शांति की जीत हुई है, मानवता की जीत हुई है। अभी आपने खड़े होकर के, ताली बजा करके मेरा सम्मान किया। मैं चाहता हूं कि आप खड़े होकर एक बार फिर ताली बजाएं, मेरे लिए नहीं, शांति के लिए, शांति के लिए, अहिंसा के लिए ताली बजाइए, शांति के लिए ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एकॉर्ड के तहत बीटीएडी में आने वाले क्षेत्र की सीमा तय करने के लिए कमीशन भी बनाया जाएगा। इस क्षेत्र को 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा, जिसका बहुत बड़ा लाभ कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी जैसे जिलों को भी मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि बोडो जनजाति के हर अधिकार का, भाषा संस्कृति का विकास सुनिश्चित होगा, संरक्षण सुनिश्चित होगा। इस समझौते के बाद इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर प्रकार की प्रगति होने वाली है। मेरे भाई और बहनों, अब सरकार का प्रयास है कि असम एकॉर्ड की धारा 6 को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले से जुड़ी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार और त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। हम लटकाने भटकाने वाले लोग नहीं हैं, हम जिम्मेदारी लेने के स्वभाव के लोग हैं। इसलिए अनेक सालों से असम की ये बात लटकी पड़ी थी, अटकी पड़ी थी, फटका दी गई थी, उसको भी हम पूरा करके रहेंगे। साथियों, आज जब बोडो क्षेत्र में नई उम्मीदों, नए सपनों, नए हौसले का संचार हुआ है,
तो आप सभी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल अब यहां के हर समाज को साथ लेकर, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर विकास का एक नया मॉडल विकसित करेगी। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि असम सरकार ने बोडो भाषा और संस्कृति को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं और बड़ी योजनाएं भी बनाई है। मैं राज्य सरकार को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, असम सरकार और केंद्र सरकार अब तीनों साथ मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को एक नया आयाम देंगे। भाइयों बहनों, इससे असम भी सशक्त होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी और मजबूत होगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत अब ये दृढ़ निश्चय कर चुका है कि अब हमें अतीत की समस्याओं उलझकर नहीं रहना। आज देश मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का समाधान चाहता है। देश के सामने कितनी ही चुनौतियां रही है जिन्हें कभी राजनीतिक वजहों से, कभी सामाजिक वजहों से नजरअंदाज किया जाता रहा। इन चुनौतियों ने देश के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में हिंसा, अस्थिरता, अविश्वास उसे बढ़ावा दिया है। दशकों से देश में ऐसे ही चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट का विषय तो ऐसा माना जाता था जिसे कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। आंदोलन हो रहे हैं, होने दो। ब्लॉकेड हो रहा है, होने दो। हिंसा हो रही है, किसी तरह काबू में कर लो। बस यही अप्रोच नॉर्थ ईस्ट के विषय में था। मैं मानता हूं कि इस अप्रोच ने उत्तर पूर्व के हमारे कुछ भाई बहनों को इतना दूर कर दिया था कि उनका संविधान और लोकतंत्र में विश्वास खोने लगा था। बीते दशकों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों निर्दोष मारे गए, हजारों सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, लाखों बेघर हुए, लाखों कभी ये देख ही नहीं पाए कि विकास का मतलब क्या होता है। ये सच्चाई पहले की सरकारें भी जानती थी, समझती थी भी, स्वीकार भी करती थी, लेकिन इस स्थिति में बदलाव कैसे हो, इस बारे में बहुत मेहनत कभी नहीं की गई। इतने बड़े झंझट में कौन हाथ लगाए? जैसे चल रहा है चलने दो, यही सोचकर लोग रह जाते थे। भाइयों और बहनों, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि हो तो फिर परिस्थितियां को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। नॉर्थ ईस्ट का पूरा विषय संवेदनशील था, इसलिए हमने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों के भावनात्मक पहलू को समझा, उनकी उम्मीदों को समझा, यहां रह रहे लोगों से बहुत अपनत्व के साथ उन्हें अपना मानते हुए संवाद कायम किया। हमने विश्वास पैदा किया, उन्हें पराया नहीं माना, ना आपको पराया माना, ना आपके नेताओं को पराया माना, अपना माना। आज इसी का नतीजा है कि जिस नॉर्थ ईस्ट में
उग्रवाद की वजह से अपनी जान गंवाते थे। अब यहां लगभग पूरी तरह शांति है और उग्रवाद समाप्ति की ओर है। जिस नॉर्थ ईस्ट में लगभग हर क्षेत्र में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा लगा हुआ था, अब हमारे आने के बाद यहां त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा आपदा से मुक्त हो चुका है। जिस नॉर्थ ईस्ट में उद्यमी निवेश के लिए तैयार नहीं होता था, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होता था, अब यहां निवेश होना शुरू हुआ है, नए उद्यम शुरू हुए हैं। जिस नॉर्थ ईस्ट में अपने अपने होमलैंड को लेकर लड़ाइयां होती थी, अब यहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हुई है। जिस नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की वजह से हजारों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए थे, अब यहां उन लोगों को पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ बसने की नई सुविधाएं दी जा रही है। जिस नॉर्थ ईस्ट में देश के बाकी हिस्से के लोग जाने से डरते थे, अब उसी को अपना नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने लगे हैं। साथियों, ये परिवर्तन कैसे आया? क्या सिर्फ एक दिन में आया? जी नहीं, ये 5 साल के अथक परिश्रम का नतीजा है। पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेसिपिएंट के तौर पर देखा जाता था, आज उनको विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है। पहले नॉर्थ ईस्ट को राज्यों को दिल्ली से बहुत दूर समझा जाता था, आज दिल्ली आपके दरवाजे पर आकर के आपके सुख दुख को सुन रही है। अब मुझे ही देखिए, मुझे अपने बोडो साथियों से, असम के लोगों से बात करनी थी, तो मैंने दिल्ली में बैठकर संदेश नहीं भेजा, बल्कि आपके बीच आकर आपकी आंखों में आंखें मिला करके आपके आशीर्वाद लेकर के आज मैं आपसे जुड़ रहा हूं। अपनी सरकार के मंत्रियों के लिए तो बकायदा मैंने रोस्टर बनाकर हमने सुनिश्चित किया कि हर 10-15 दिन में केंद्र सरकार का कोई न कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में अवश्य जाएगा, रात को रुकेगा, लोगों को मिलेगा, सुख दुख सुनेगा, समस्याओं का समाधान करेगा। यहां आके करेगा, ये हमने करके दिखाया। हमारे साथियों ने प्रयास किया कि वो ज्यादा से ज्यादा समय यहां बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, उनकी समस्याएं समझे, सुलझाएं। मैं और मेरी सरकार निरंतर आपके बीच आकर आपकी समस्याओं को जान रहे हैं, सीधे आपसे फीडबैक लेकर केंद्र सरकार की जरूरी नीतियां बना रहे हैं। साथियों, 13वें वित्त आयोग के दौरान नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए से भी कम मिलते थे। 90,000 करोड़ रुपए से कम। 14वें वित्त आयोग में हमारे आने के बाद ये बढ़कर के लगभग 3 लाख करोड़ रुपए मिलना तय हुआ है। कहां 90,000 और कहां 3 लाख करोड़ रुपया। पिछले 3-4 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं, नए नेशनल हाईवे स्वीकृत किए गए हैं,
नॉर्थ ईस्ट के पूरे रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदला जा चुका है। पूर्वोत्तर में नए एयरपोर्ट्स का निर्माण और पुराने एयरपोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में इतनी नदियां हैं, इतना व्यापक जल संसाधन है, लेकिन 2014 तक यहां केवल एक वाटरवे था, एक पानी से भरी हुई 365 दिन बहने वाली नदियां, कोई देखने वाला नहीं था। अब यहां 1 दर्जन से ज्यादा वाटरवे पे काम हो रहा है। पूर्वोत्तर के यूथ को एजुकेशन, स्किल और स्पोर्ट्स के नए संस्थानों से मजबूत करने पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली और बेंगलुरु में नए हॉस्टल्स बनाने का भी काम हुआ है। साथियों, नए रेलवे स्टेशन हो, नए रेलवे रूट हो, नए एयरपोर्ट हो, नए वाटरवे हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज जितना काम नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हम दशकों पुराने लटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के साथ ही नए प्रोजेक्ट को भी तेज गति से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तेजी से पूरे होते प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी सुधारेंगे, टूरिज्म सेक्टर मजबूत करेंगे और रोजगार के लाखों नए अवसर भी बनाएंगे। अभी पिछले ही महीने नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में चलने वाली गैस ग्रिड परियोजना के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट का जंगल नहीं होता, इसका मानवीय प्रभाव है और इससे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनकी परवाह करता है। जब बोगीबील पुल जैसे दशकों से लटके अनेक प्रोजेक्ट पूरे होने से लाखों लोगों को कनेक्टिविटी मिलती है, तब उनका सरकार पर विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है। यही वजह है कि विकास के चौतरफा हो रहे कार्यों ने अलगाव को लगाव में बदलने में, अलगाव को लगाव में बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब अलगाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ लगाव। और जब लगाव होता है, जब प्रगति सभी के लिए समान रूप से पहुंचने लगती है, तो लोग एक साथ काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब लोग एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो बड़े से बड़े मुद्दे भी हल हो जाते हैं। साथियों, ऐसा ही एक मुद्दा ब्रू रियांग जनजातियों के पुनर्वास का कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा और मिजोरम के बीच असम में जीने के लिए मजबूर ब्रू रियांग जनजातियों के पुनर्वास का ऐतिहासिक समझौता हुआ है। करीब 2.5 दशक बाद हुए इस समझौते से हजारों परिवारों को अब अपना स्थायी घर, स्थायी पता मिलना निश्चित हुआ है। ब्रू रियांग जनजातीय समाज के इन साथियों को ठीक से बसाने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष पैकेज दिया जाएगा। साथियों, आज देश में हमारी सरकार की ईमानदार कोशिशों की वजह से ये भावना विकसित हुई है कि सबके साथ में ही देश का हित है। इसी भावना से
कुछ दिन पहले ही गुवाहाटी में 8 अलग अलग गुटों के लगभग 650 कैडर्स उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ करके शांति का रास्ता चुना है। इन कैडर्स ने आधुनिक हथियार, बड़ी मात्रा में विस्फोटक और गोलियों के साथ अपने आप को सरेंडर कर दिया, शांति को सरेंडर कर दिया, अहिंसा को सरेंडर कर दिया। अब इन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। साथियों, पिछले साल ही नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और सरकार के बीच एक समझौता हुआ और मैं समझता हूं ये समझौता भी बहुत महत्वपूर्ण कदम था। एनएलएफटी पर 1997 से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। बरसों तक ये संगठन हिंसा का मार्ग अपनाता रहा था। हमारी सरकार ने वर्ष 2015 में एनएलएफटी से बातचीत करना शुरू किया, उनको विश्वास में लेने का प्रयास किया, बीच में कुछ लोगों को रख करके मदद ली और इसके कुछ समय बाद ये लोग भी जो बम, बंदूक और पिस्तौल में ही विश्वास करते थे, सब कुछ छोड़ दिया और हिंसा फैलानी बंद कर दी। निरंतर प्रयास के बाद पिछले साल 10 अगस्त को हुए समझौते के बाद ये संगठन हथियार छोड़ने और भारत के संविधान को पालन करने के लिए तैयार हो गए, मुख्य धारा में लौट गए। इस समझौते के बाद एनएलएफटी के दर्जनों कैडर्स ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भाई और बहनों, वोट के लिए, राजनीतिक हित के लिए मुद्दों को, मुश्किलों को बनाए रखने और उनको टालते रहने का एक बड़ा नुकसान असम और नॉर्थ ईस्ट को हुआ है, देश को हुआ है। साथियों, रोड अटकाने की, रुकावट डालने की, असुविधा पैदा करने की इस राजनीति के माध्यम से देश के विरुद्ध काम करने वाली एक मानसिकता पैदा की जा रही है। जो विचार, जो प्रवृत्ति, जो राजनीति ऐसी मानसिकता को प्रोत्साहित करती है, ऐसे लोग ना तो भारत को जानते हैं और न ही असम को समझते हैं। असम का भारत से जुड़ाव दिल से है, आत्मा से है। असम श्रीमद शंकरदेव जी के संस्कारों को जीता है। श्रीमद शंकरदेव जी कहते हैं, कोटि कोटि जन्मांतरे जहार, कोटि कोटि जन्मांतरे जहार, आसे महापुण्य राशि सीसी कदाचित मनुष्य होवे, भारत भरी से आसी, भारत भरी से आसी। यानी जिस व्यक्ति ने अनेक जन्मों से निरंतर पुण्य कमाया है, वही व्यक्ति इस भारत देश में जन्म लेता है। ये भावना असम के कोने कोने में, असम के कण कण में, असम के जन जन में इसी भावना के चलते भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर भारत के नवनिर्माण में असम ने अपना खून और पसीना बहाया है। ये भूमि आजादी के लिए त्याग तपस्या करने वालों की भूमि है। मैं आज असम के हर साथी को यह आश्वस्त करने आया हूं कि असम विरोधी, देश विरोधी हर मानसिकता को, इसके समर्थकों को देश न बर्दाश्त करेगा, न कभी देश माफ करेगा। साथियों, यही ताकतें हैं जो पूरी ताकत से असम और नॉर्थ ईस्ट में भी
अफवाहें फैला रही हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए से यहां बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर से लोग आकर बस जाएंगे। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा। भाइयों और बहनों, मैंने असम में लंबे समय तक यहां के लोगों के बीच एक सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। छोटे छोटे इलाकों में मैंने दौरा किया हुआ है और अपने प्रवास के दौरान जब अपने साथियों के साथ बैठता था, चलते जाते, तो हमेशा भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के लोकप्रिय गीत की पंक्तियां यहां के साथियां, हमारे सब साथी अक्सर सुनाता करते थे। और भूपेन हजारिका, मेरा एक विशेष लगाव भी है उनके साथ। उसका कारण है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ और भूपेन हजारिका, भारत रत्न भूपेन हजारिका मेरे गुजरात के दामाद है। इसका भी हमें गर्व है। और उनके बेटे, उनके बच्चे आज भी गुजराती बोलते हैं, असमिया भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं और इसलिए गर्व होता है। और जब मैं सुनता था कि गोटोई जीवन बिसारी लेऊ, गोटोई जुबेन बिसारी लेऊ, अलेख दिवस राती अहम देह दरे ने पाऊं, ईमान रहाल माटी। असम जैसा प्रदेश, असम जैसी माटी, यहां के लोगों जितना अपनापन मिलना वाकई अपने आप में बड़े भाग्य की बात है। मुझे पता है कि यहाँ के अलग अलग समाज के लोग संस्कृति, भाषा, भूषा, खान पान इतने समृद्धि है। आपके एस्पिरेशंस, आपके सुख दुख, हर बात की भी मुझे पूरी जानकारी। जिस प्रकार आपने सारे भ्रम समाप्त कर, सारी मांगे समाप्त कर, बोडो समाज से जुड़े साथी साथ हैं, मुझे उम्मीद है कि अन्य लोगों के भी सारे भ्रम बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। साथियों, बीते 5 वर्ष में भारत के इतिहास और वर्तमान में असम के योगदान को पूरे देश में पहुंचाने का काम हुआ है। पहली बार राष्ट्रीय मीडिया में असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की कला, संस्कृति, यहाँ के युवा टैलेंट, यहाँ के स्पोर्टिंग कल्चर को पूरे देश और दुनिया में प्रमोट किया गया है। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे निरंतर आपके हित में काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ये आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके आशीर्वाद की ताकत बहुत बड़ी है। आप अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखें, अपने साथी पर विश्वास रखें और मां कामाख्या की कृपा पर विश्वास रखें। मां कामाख्या की आस्था और आशीर्वाद हमें विकास की नई ऊंचाइयों के ले जाएगा। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था, और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात, और वो भी युद्ध की भूमि में कहा था। हाथ में शस्त्र थे, शस्त्र और रास्ते चल रहे थे। उस युद्ध की भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, और गीता में कहा है, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव, यानी किसी भी प्राणी से बैर न रखने वाला व्यक्ति ही मेरा है। सोचिए, महाभारत के उस ऐतिहासिक युद्ध में भी भगवान कृष्ण का यही संदेश था, किसी से बैर मत करो,
किसी से दुश्मनी मत करो। देश में बैर भाव की थोड़ी सी भी भावना लिए व्यक्ति से मैं यही कहूंगा कि बैर की भावना छोड़िए, दुश्मनी की भावना छोड़िए। आप विकास की मुख्य धारा में आइए, सबके साथ से सबका विकास करिए। हिंसा से न कभी कुछ हुआ, न कुछ हासिल हुआ है, न कभी आगे भी हासिल होने की संभावना होती है। साथियों, एक बार फिर बोडो साथियों को, असम और नॉर्थ ईस्ट को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार ये विशाल जनसागर, ये दृश्य जीवन में मैं नहीं जानता हूं मुझे फिर कभी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये संभव ही नहीं लगता है। शायद हिंदुस्तान के किसी राजनेता को ऐसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य न पहले मिला होगा, न भविष्य में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं कह नहीं सकता। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यवान मानता हूं, बहुत बड़ा भाग्यवान मानता हूं। आप इतना प्यार, इतने आशीर्वाद बरसा रहे हैं। यही आशीर्वाद, यही प्रेम मेरी प्रेरणा है। यही मुझे देश के लिए, आपके लिए दिन रात कुछ न कुछ करते रहने की ताकत देता है। मैं आप लोगों का जितना आभार व्यक्त करूं, आप लोगों का जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। और मैं फिर एक बार अहिंसा का रास्ता चुनने के लिए, शस्त्रों को छोड़ने के लिए ये जो नौजवान आगे आए हैं, आप विश्वास रखिए, आपकी नई जीवन की शुरुआत हो रही है। पूरे देश के आशीर्वाद आप पर है। 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आप पर है। और मैं नॉर्थ ईस्ट में, नक्सली इलाके में, जम्मू कश्मीर में अभी भी जिनका बंदूक में, बम में, पिस्तौल में भरोसा है, उनको मैं कहता हूं, आइए मेरे बोडो के नौजवानों से कुछ सीखिए। मेरे बोडो के नौजवानों से प्रेरणा लीजिए। लौट आइए, वापस लौट आइए, मुख्य धारा में आइए। जीवन जी करके जिंदगी का जश्न मनाइए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार इस धरती को प्रणाम करते हुए, इस धरती के लिए जीने वाले ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, आप सबको वंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं, मेरी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की पूरी ताकत से बोलिए, 130 करोड़ देशवासियों के दिलों को छू जाए ऐसी आवाज निकालिए। भारत माता की, 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 भारत माता की। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वादे नहीं, इरादे लेके आए लोकप्रिय राष्ट्रनायक भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं और तालियों की गूंज के साथ, गर्जन के साथ हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनकी उपस्थिति ने, उनके शब्दों ने, उनके कर्मों ने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है। हम पुनः बार उन्हें तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। पुनर्बार आमी ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয়লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ উপস্থিতিয়ে, তেখেতৰ শব্দই, তেখেতৰ কৰ্মই আমাক সদায় উৎসাহিত কৰি আহিছে। আৰু লগতে আমাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট আটাইকেইগৰাকী অতিথিলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আজি কোকৰাঝাৰৰ এই
খেলপথাৰত উপস্থিত হোৱা সকলো ৰাইজলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো ধন্যবাদ। অসম জয় হিন্দ। मानगोनां रायजोफोर बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंथांमोननि जोबोद खस्थ' सहायनायजों मैयानिफ्रायनो दिनैनि हाबाफारिया जाफुंसार जाबाय आरो बेनिफ्रायनो जोङो सारा दुनियानो सारा मुलुगनो मोनसे मेसेज होनो हाबाय बिथांनि गेजेरजों बर' हारिया जे शान्ति लुबैग्रा मोनसे हारि, बर' हारिया जे जौगानो लुबैग्रा मोनसे हारि, शान्तिनि थाखाय हारिनि थाखाय आरो जौगानायनि थाखाय गासैबो खामानिखौ बर' हारिया मावनो हायो। नोंथांमोना जि डिसिप्लिन दिन्थिबाय बिनि थाखाय जोङो बयबो नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। फिरफिलाफोरखौ गावबा गाव लानानै थां, बेसफोरखौ लामाफ्राव गारलाबायनाङा आरो लासै लासै थां। लाख लाख मानसि, एसे खस्थ' जागोन, उखैगोन, दै गांगोन, नाथाय हारिनि थाखायसो बियो। दिनै बर' हारिया फिन खेबसेबाव बे सुबुं गौमानि गेजेरजों हारिनि खौसेथि, हारिनि गोहोखौ मुलुगनि सिगाङाव दिन्थिनो हाबाय। दा बेनिखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। सोरबा उन्दैफोर दङब्ला एसे मोजाङै गथ'फोरखौ नोजोर होयो आरो बैसोगोराफोरनोबो एसे अननानै लामाफोरखौ हगारनानै होयो। गारि सालायनाय समावबो मोजाङैनो गारिफोरखौ सालायलाङो। नोंथांमोनखौ आङो बयखौबो गोसो हमथानानै मोजाङै थांनो थाखाय खावलायबाय। So the rise, মই